सबको खुशामदीद। Today we're gonna start a new study, a new letter of Paul. आज हम पौलुस रसूल का एक नया खत शुरू करने को है, नया मुतालिया शुरू करेंगे। This is his letter to the church, the epistle to the Galatian church. और ये जो उसका खत है, ये गलातियों की कलीसिया के नाम है। Galatia was a province of the Roman Empire. गलातियों जो था वो रोमियो की जो हुकूमत थी उसका एक दारुल खिलाफा था। Now today it's in the south of Turkey, the southern part of the. अब ये शुमाल की तरफ, जो तुर्की में शुमाल की तरफ जो है वाक़या है, उसका एक सूबा है। The purpose of this epistle was to do away with, to eradicate the doctrinal errors which had been introduced by Judaizers. और ये यहूदी लोगों ने जो खुदा यीशु मसीह की जो मुनादी थी उसमें जो गलत तशरीह और गलत चीजें डाल दी थी, ये उसके लिए लिखा गया था ताकि उसको क्लियर किया जा सके। So he wrote this letter to help them and to encourage them. और इसने ये खत इसलिए लिखा ताकि वो उनकी इस्लाह कर सके और उनको और आगे बढ़ने की तसल्ली दे सके। Reminding them to keep firm, to stay firm to what they learned from him. You know, stay firm with the doctrines they learned first. और खुदा के कलाम पर खड़े रहें, जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको मजबूती से थामे रहें, जो कुछ उन्होंने पौलुस से सीखा था। These Galatians, Galatians were famous of, conflicts. They were conflict people, problem people. गलतियों के जो लोग थे, ये इनमें अक्सर मुतनाज़ा रहता था। ये ऐसी कौम थी, ये लड़ना झगड़ना। Like maybe you have some friends that have a quick temper. हो सकता है आपके कुछ ऐसे दोस्त हों जो बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। That was one of the characteristics of the Galatian people. और ये गलतियों की कलीसिया का एक भी ऐसा ही हाल था। I'm sure some people were like that in the church too, और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आज चर्च के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। So the congregations in the Galatian region were started by Paul during his first missionary journey. गलतियों की जो कलीसिया थी वो उसके पहले मिशनरी दौरे पर जो थी वो शुरू की गई। You can read the story in Acts 13 and 14 how Paul planted these churches. अगर आप इमाल 13 और 14वें बाब को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे गलतियों की कलीसिया जो थी वो शुरू हुई, कैसे उसका आगाज हुआ। In Acts 14 verse 27, 14वें बाब की 27वीं आयत में इमाल, there is this proclamation of a door of faith being open to us. कि उनके लिए ईमान का एक दरवाजा खोला गया, ये बयान वहां पर मिलता है। So Paul calls this an opportunity of faith, an opportunity when there are people that have faith and they are accepting. तो पौलुस रसूल के लिए ये एक मौका था कि वहां पर लोग थे और वो उनके साथ शेयर करता और ईमान वो उसके जरिए से, उसकी मनादी के जरिए से वो ईमान को रिसीव करते। People are believing, they are new believers, so there is fire, there is something new. नए जो ईमानदार थे वो आग के शोलों की माने थे, ऐसे पुरजोश थे वो। So he planted these churches on his first missionary journey, then he revisited these churches on his second missionary journey. उसने पहले अपने मिशनरी दौरे में इसकी बुनियाद रखी और फिर दूसरी बार जब वो जाता है तो फिर दोबारा से इसको विजिट करता है। The second journey was in Acts 16 verse 1 till verse 6. You can read the story. और उसका जो दूसरा मिशनरी सफर था वो 16वें बाब की पहली आयत से शुरू होता है। And then he again visited them on his third missionary journey in Acts 18. और फिर वो दोबारा जो है उसने फिर इस कलीसिया को विजिट किया। Yeah. So the point is,
in that region, the Judaistic teachers, they were very active, and they were actually attacking Paul's doctrines, Paul's teachings. उस इलाके में जो यहूदी उस्ताद थे, वो पलूस रसूल ने जो ने फजल के बारे में बताया था, जो कुछ भी सिखाया था, उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे असल में वो. And the good thing was that there were not only Jewish believers, but there were many Gentile believers. और उसमें दूसरी बात ये भी है कि यहूदी ही नहीं थे, बल्कि वहां पर गैर बुत परस्त जो लोग थे, वो भी उनकी मुखालफत कर रहे थे मसीहों की. So this is the setting now, and there is this conflict, and this is how Paul is writing this letter, knowing about all these things. So इस तरह से जो है ये खत लिखा गया, इस सारे खलासे को मद्देनजर रखते हुए पलूस रसूल ने ये खत लिखा. Yeah. Paul is actually here defending his apostleship. पलूस रसूल यहाँ पर अपने ईमान का दिफा कर रहा है. Paul's apostleship is not from human authority. पलूस रसूल को जो खिदमत दी गई थी रसूल की, वो इंसान की तरफ से नहीं दी गई थी, but from God. His apostleship was from God. बल्कि उसका रसूल मुकर्रर किया जाना खुदा की तरफ से था. And that's how he proclaimed the true gospel to them. और इसी की वजह से वो इंजील की जो मुनादी है वो लोगों के दरमियान करता था. Paul emphasized that the right relationship with God पलूस रसूल ये कहता है कि खुदा के साथ एक खालिस और मुखलिस रिश्ता जो है was based on believing in Christ. वो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर है. So again, I want to say this again. The right relationship with God was based on believing in Christ. That's where everything started. यीशु मसीह पर आपका ईमान लाना, ये आपके ईमान की बुनियाद है. Yeah. So in this letter, इस खत में we will see some contrast. You know what is a contrast? हम इस खत के अंदर कुछ मुआजना देखेंगे. Okay, I give you the first one. A different type of gospel versus the authentic gospel. कोई और तरह की खुशखबरी, ठीक है, जिसमें कोई और ही बातें बयान की गई हैं. Man's reasoning versus God's revelation. इंसान की बातें और खुदा का मुकाशफा. We see in this epistle the law versus grace. शरीयत बामुकाबले फजल. We will see works versus faith. हम देखेंगे काम जो हमारे शरीयत के काम हैं, और उसके बाद फिर हम ईमान को देखेंगे, इसके मुतरादिफ हैं. We will see the curse of death versus the blessing of life. मौत की लानत और जिंदगी की बरकतों को हम देखेंगे. We will see condemnation versus exoneration. लानत और बरकत को हम देखेंगे, पाक किए जाने को देखेंगे. Defeat versus victory. शिकस्त और फतहमंदी को हम देखेंगे इसमें. The old covenant versus the new covenant. पुराने जो वादा था, ठीक है, और जो नया वादा था उसको भी हम देखेंगे. Living in the flesh versus walking in the spirit. जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी के बारे में भी हम देखेंगे. Okay, so let's start. Wow. आइए इसको शुरू करते हैं. Okay, so verse 1. पहली आयत. Paul, an apostle not sent from man, nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. पलूस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है. And all the brethren who are with me to the churches of Galatia. और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसिया को.
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. खुदा बाप और हमारे खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, Who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil age, according to the will of our God and Father. उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुताबिक हमें, To whom be glory forever ever. Amen. हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे, उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। So Paul's great greeting is Paul, an apostle. तो पलूस रसूल जो है वो खत का आगाज जो है सलाम के जरिए से और कहता है कि पलूस यानी जो मैं हूँ वो एक रसूल है। I know who I am. वो ये जानता है कि मैं कौन हूँ। I know whose I am. वो ये कहता है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। I'm not selected by people. वो ये I'm कहता है not called by a church. मैं आदमियों का चुना हुआ जरिया नहीं हूँ और ना ही कलीसिया ने मुझे खड़ा किया है, But through Jesus Christ, बल्कि I यीशु am मसीह के an वसीला apostle. से मैं एक रसूल मुकर्रर किया गया। And I want you to have peace, grace and peace from और God the Father. और वो ये कहता है कि तुम पर फजल और इत्मीनान होता रहे, इसको हासिल करो तुम। I want you to understand who Jesus is and what he has done. वो ये चाहता है कि आप ये समझ ले कि यीशु मसीह कौन था और उसने आपके लिए क्या किया है। So this is his starting method and starting introduction. तो ये उसका जो शुरू करने का तरीका है, खत में इस तरह से बयान किया गया है। And then he goes into the real subject. You ready? और फिर आगे जो जो सच्ची बात है उसकी तरफ फिर वो जाता है, जो सही मुद्दे पर आता है वो। This is very important for us in Bible school to know these words and understand these words. ये बाइबल स्कूल में होने के नाते से हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको समझ लें। अपने अपने कैमरे ऑन कर लें प्लीज, जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं, because we can learn and we can be excited. हम about सीख that. सकते हैं और हम इसको खुशी के साथ रिसीव कर सकते हैं, And we can learn from God, hear from God. और हम खुदा से सीख सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। But then somebody comes and they confuse us. लेकिन फिर बाद में कोई आता है और वो हमें बुखलाहट का शिकार कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। This is why in Bible school it's very important to study the Bible verse by verse, line upon line. इसीलिए बाइबल स्कूल में बहुत जरूरी है कि एक एक लाइन को, एक एक वर्स को देखा जाए। You know, if I'm giving you false doctrine or false explanation, you can always say, Joseph, it's not like that. That's wrong. अगर पास्टर जोसेफ आपको कलाम की गलत तशरीह बताते हैं, सही बात नहीं बताते, तो आप कह सकते हैं कि आप ठीक नहीं बता रहे। If you have proof, I'm always open to correction. You correct me, you help me. अगर आपके पास कोई सबूत है तो मैं हर वक्त जो है, जब भी हम क्लास करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, मेरी इस्लाह फरमा सकते हैं। But I want to only teach the Bible with the Bible, and I think that gives very big authority for me to teach. मैं सिर्फ कलाम को कलाम के जरिए से सिखाता हूँ। जुमला बड़ा जबरदस्त है, कलाम को कलाम के जरिए से सिखाता हूँ और यही मुझे जो है वो इख्तियार बख्शा गया है। So let's look at verse 6. आइए 6वीं आयत को देखते हैं। गलतियों पहला बाब 6वीं आयत। Galatians 1:6. पहला बाब। I'm amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel. मैं तजब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। It says for a different gospel. किसी और तरह की खुशखबरी। You are playing the prostitute and you are deserting God who called you for a different gospel. आप
आप उस गुनाहों की तरफ जलते जा रहे हैं और आपने खुशखबरी के पैगाम को जो है वो बदल के रख दिया है। It's a different gospel, he says. जो आपके पास मुनादी की जा रही है वो कोई और खुशखबरी है। But look at verse 7. 7वीं आयत को देखें। But which is really not different. It's not another. मगर वो दूसरी नहीं है, अलबत्ता बाज। Different, I mean, it sounds different, maybe it looks different, but it's not different. वो दिखने में तो मुख्तलिफ लगती है, सुनने में मुख्तलिफ लगती है, लेकिन वो है नहीं है, कोई और नहीं है वो। Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. मगर वो दूसरी नहीं है, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। These were the Judaizers. ये जो यहूदी थे, जो बड़े गर्म जोश यहूदी थे, ये उनके बारे में है। These were the brothers that said, "Oh, but you have to focus on the law. You have to, you have to keep Moses and ये वो लोग थे जो कहते थे कि आपको मूसा की शरीयत जो है उसको लाजमी फॉलो करना है, उसको जरूर माने। So Paul is angry. तो पौलुस रसूल यहाँ पर नाराज हो रहा है। Just like I would be angry if someone would teach my disciples false doctrine. I would be angry. ये ऐसे ही है जैसे मेरे स्टूडेंट्स को, जैसे हम बाइबल स्कूल में आज बैठे हुए हैं, तो आपको कोई गलत तालीम दे तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे दुख होगा। Because what happened, many of these new believers, when they heard these Judaizers, they were disturbed and they were confused. क्योंकि ऐसा होता है कि जो नए ईमानदार होते हैं, जब उन्होंने ये यहूदियों की बातों को सुना या किसी और की बातों को सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। But what Paul says, it's shocking. Verse 8. जो 8वीं आयत में पौलुस रसूल बात करता है वो बड़ी जबरदस्त है। But even though we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary that which we have preached to you at the beginning, let him be accursed. लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। Now that's interesting. Wow. बड़ी जबरदस्त बात है। Here, Paul does not include the possibility of himself or an angel preaching a false gospel. यहाँ पर पौलुस रसूल जो है उसने अपने बारे में नहीं बताया, और ना यहाँ पर उसने कहा कि जो गिरे हुए फरिश्ते हैं वो वाले। He's just simply giving a hypothesis, saying it could, if this would happen, don't listen. वो ये कह रहा है कि अगर आसमानी फरिश्ते भी नीचे उतर आए तो तुमने उनको नहीं सुनना, जो मैंने सुना दिया वो बस है, आखिर है, वो सही है। This is a very strong argument. ये बहुत खुशक आयत है, ये जो 8वीं आयत है बड़ी स्ट्रॉन्ग आयत है। And he's actually implying, he's like saying that it's impossible for Paul or for an angel to preach another gospel. There's no other gospel. वो ये कह रहा है कि ये पौलुस के लिए, यहाँ तक के फरिश्तों के लिए भी ये मुश्किल है कि वो इस किस्म की शरीयत को या खुशखबरी को सुनाएं। If you are familiar with 1 Corinthians chapter 13, अगर आप 13वें बाब, पहला कुरिन्थियों 13वें बाब को पढ़ते हैं, Paul is writing the same way as he's writing this verse. तो इसी तरह से वो वहां पर भी लिखता है। And I love it. और मुझे ये आयत बहुत पसंद है। Because this is a very strong point. This point had to be made. ये बड़ा जबरदस्त था और ये अच्छा किया कि उसने ये लिखा है ऐसे। You don't listen to another gospel. Let him be accursed. कि आपने किसी और खुशखबरी को नहीं सुनना है, मलाउन है, लानती है वो जो किसी और खुशखबरी को सुनता है। Yes, let him be accursed. The Greek word anathema. ये जो ग्रीक लफ्ज है इसके लिए, लानती के लिए, वो है अनखमा। Anathema. Anathema. जो भी है जो ये कह रहे हैं।
I will write it down next time. You know, like let him be cursed. वो लानती है जो ऐसा करता है। Okay, verse 9. 9वीं आयत, And we have said before, so I am saying now, जैसा हम पेशतर कह चुके हैं, if any man is preaching to you a gospel contrary that which you receive, let him be accursed. He says it again. वैसा ही अब भी फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन है। वो फिर यहाँ पर कह रहा है कि वो लानती है, मलाउन है वो। Anathema again. अनैथमा दोबारा से, यानी मलाउन है वो। When in the Bible we see something said once, कहाँ पर बाइबल में हमने देखा है कि जो बाइबल में एक ही दफा आया हो? you know, you remember Jesus used to say, truly, truly. यीशु मसीह ने आपको याद होगा कि एक ही लफ्ज जो थे वो 2 बार कहे, यानी मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। You know, he said it twice. Sometimes he said it 3 times. कई बार उसने 2 बार कहा, कई बार उसने 3 बार कहा। Here we have Paul saying the same argument 2 times. पौलुस रसूल यहाँ पर एक ही बात दो दफा कर रहा है। Don't, Paul is saying, what we teach to you, what we preach to you at the beginning, that's what you follow. पौलुस ये कह रहा है, जो कुछ शुरू में हमने आपको सिखाया था, यानी उस कलीसिया को जो कुछ तुम्हें बताया गया था, बस उस पर अमल करो। You got saved, you got the fire of God in you, you are pure, you are redeemed by God, and you follow the faith. तुम बचा लिए गए हो, तुम्हें निजात दी गई थी, और अब तुम उस ईमान पर चलते रहो जो तुम्हें सिखाया गया था। And then he explains, verse 10. और फिर 10वीं आयत में वो फिर आगे बयान करता है, For am I now seeking the favor of man or of God? अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ। If we were still trying to please men, I would not be a bondservant of Christ. या खुदा को, क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? I love this because it says, अगर अब तक आदमी को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। it says, I am seeking the favor of God, not the favor of man. वो ये कहता है कि मैं खुदा को खुश करना चाहता हूँ, ना कि इंसान को खुश करना चाहता हूँ। If God knows me, that's good enough for me. अगर खुदा मुझे जानता है तो मेरे लिए यही सब कुछ है। I don't care about the opinion and I don't care about the judgments of man. मुझे लोगों की राय की और लोग जो मेरे बारे तनकीद करते हैं उनकी कोई परवाह नहीं है मुझे। You know, if I would have listened to my family, अगर मैं अपने खानदान को सुनूं, I would never be a missionary. तो पास्टर जोसेफ अपनी बात कर रहे हैं कि अगर ये अपने खानदान को सुनते तो कभी भी ये मिशनरी ना बनते। My family was convinced that I'm going to die on the mission. मेरी फैमिली ने पूरा यकीन से कि मैं किसी दिन मिशन दी राह ते मर जावांगा किसी मुल्क च। And I said, oh, what a nice idea. I'm going to die. Great. I'm going to be with the Lord. तो मैं उनसे कहता था, अच्छा होएगा मैं किसी मिशन फील्ड से मर जावां, मैं खुदा को चले जावांगा। Oh, you're going to Tajikistan, you're going to Afghanistan, are you crazy? लोग मेरे घर दे मैंने कहना ही, तू पागल है, तू अफगानिस्तान जा रहे हैं, तजाकिस्तान जा रहे हैं, की करना तू उधर जाके? I said, I want to go to the place that most needs the gospel. और मैं उन्हें कहता था, मैं उस जगह पर जाऊंगा जिस जगह पर बाइबल की सबसे ज्यादा जरूरत है। Do you want me to just stay here and watch TV and eat food and do business and just, make money? I mean, what does that help for the gospel? मैं उनसे कहता था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं यहीं पर रहूं, टीवी देखता रहा, बिजनेस करा, खुशहाल हो जाऊं, लेकिन इससे बाइबल को क्या फायदा होगा? Yeah, if God calls you to be a missionary, अगर खुदावंद आपको मिशन के लिए बुलाता है, be a missionary. तो मिशनरी बन जाए। आमीन। Don't listen to people. Don't listen to your mother or father
I mean, you tell them pray for me, but you don't listen to them because they would never let you go. अपने माँ बाप की भी ना सुने, क्योंकि वो आपको कभी भी नहीं जाने देंगे। उन्हें कहीं मेरे लिए दुआ करें बस आप। But one of the best things you can do, and this I learned this by experience. मैंने ये अपने तजर्बे से सीखा है, जो कुछ आप कर सकते हैं। Take your children to the mission field with you. अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं मिशन फील्ड पर। You know, go to mission. If God calls you, He will have the provision for you, and you will be able to do it. अगर खुदा ने आपको बुलाया है मिशन के लिए, तो आप चले जाएं, तो खुदावन सारी चीजें फिर प्रोवाइड करता जाएगा मिशन के लिए। And that's what Paul is saying. और यही पौलुस रसूल यहाँ पर बयान कर रहा है। I'm not seeking the favor of men. I'm वो ये कहा seeking कि मुझे आदमियों की परवाह नहीं है, मैं आदमियों को कुछ नहीं करना चाहता। I know that I have the favor of God, and वो ये that's good कहता है enough. कि मुझे पता है कि खुदावंद मेरे साथ है, और यही Okay. मेरे लिए काफी है। Now, from verse 11, we have a new topic. 11वीं आयत से एक नया टॉपिक शुरू होता है। Here we will see Paul masterfully defending his ministry, his calling. यहाँ पर हम देखेंगे कि पौलुस रसूल बड़े इख्तियार के साथ अपनी मिनिस्ट्री का दफा कर रहा है। And I can say this is actually valid for me also, or for you as a believer in Jesus Christ. We can use this defense for our own defense. ये दफा आप अब चर्च में एक ईमानदार होने के नाते से और एक पादरी होने के नाते से आप भी ये जुमले, ये आयत यूज कर सकते हैं। Yeah, if anyone challenges you, you can use this defense. अगर कोई आपको चैलेंज करता है, तो आप अपने दफा में, अपने बयान में ये बयान कर सकते हैं। This is amazing. Let's read it. It's like a master defense. ये बहुत जबरदस्त दफा है। आए देखिए इसको, 11वीं आयत को। Paul says, "For I would have you known, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man." ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं। For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through the revelation of Jesus Christ. क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। Paul says, it's not my gospel, it's his gospel. पौलुस रसूल कह रहा है ये मेरी खुशखबरी नहीं है, ये उसकी खुशखबरी है। This is something that Jesus taught me. I received it through Jesus Christ. वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे ये सिखाया था और मैंने उसके वसीला से ये रिसीव किया है। And now comes more personal, verse 13. और 13वीं आयत थोड़ी सी जातियात पर है। For you have heard of my former manner of life in Judaism. चुनाचा यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो। For I used to persecute the church of God beyond measure and try to destroy it. कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़हद सताता और तबाह करता था। Paul says, this is no secret. Everybody knows. वो ये कह रहा I है कि was persecuting everybody. ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, सारे नु पता सी कि मैं की करना था। I had my own will, my own program. मेरी अपनी मर्जी सी, मेरा अपना प्लान सी, मैं सारा कुछ अपनी मर्जी ना करना था। Verse 14. 14वीं आयत। I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रिवायतों और नहायत सरगर्म था। Remember, the conflict in this letter is with the Judaizers. याद रखिए कि इस खत का जो मुआजना है वो यहूदियों के साथ है, ठीक है? And Paul is saying, I used to be a Judaizer. I know where they are coming from. I know their program. पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं भी पहले यहूदियों का यहूदी था और मुझे पता है कि उनकी बैकग्राउंड क्या थी।
They are trying to confuse you. They are trying to stop you in your faith. वो ये कहता है कि वो आपको रोकना चाहते हैं, वो आपको परेशान करना चाहते हैं। But listen to my testimony, Paul says. लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि आपने मेरी गवाही पर ध्यान देना है बस। Verse 15. 15वीं आयत। But when he who had set me apart, even from my mother's womb, and called me through his grace, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, he was pleased to reveal his son in me, जब उसकी मर्जी हुई कि वो अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे, that I might preach him among the Gentiles, ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। and I did not immediately consult with flesh and blood, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली, nor did I go up to Jerusalem to those who are apostles before me, और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, but I went away to Arabia and returned once more to Damascus. बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। I believe these years when Paul goes away to Arabia, मैं ये सोचता हूँ कि इन सालों में जब वो अरब में चले गया था, this is where he really learns from the Spirit of God. He really learns, and that's why he was so good at preaching, because God taught him, and the gospel that he received from Jesus Christ, that was his preaching. जब वो इन सालों में तन्हा हो गया तो यही वो वक्त था कि खुदा उसके साथ बात कर रहा था, और जब वो फिर वापस आता है तो वही बातें जो खुदा ने उसके साथ की थी वो आकर दोबारा से बयान करता है। So this was Paul's time alone with God. So ये पौलुस रसूल का तन्हाई में खुदा के साथ एक वक्त था। 3 years, maybe more. 3 साल और मे भी इससे ज्यादा का अरसा। Okay, actually verse 18, this is what it says, verse 18. 18वीं आयत। Then 3 years later, I went up to Jerusalem to become acquainted. फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया। Yeah, with Peter, and stayed with him 15 days. और 15 दिन उसके पास रहा। But I did not see any other of the apostles except James, the Lord's brother. मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से ना मिला। Now, in what I'm writing to you, I assure you before God that I am not lying. जो बातें मैं तुमको लिखता हूँ, खुदा को हाजिर जानकर कहता हूँ कि वो झूठी नहीं। Then I went into the regions of Syria and Cilicia. इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया। And I was still unknown by sight to the churches of Judea which were in Christ. और यहूदिया की कलीसियाएं जो मसीह में थी मेरी सूरत से तो वाकिफ ना थी, but only they kept hearing, he who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy. मगर सिर्फ यही सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था वो अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था। And I love this verse 14. They were glorifying God because of me. 24वीं आयत, और वो मेरे बाइस खुदा की तमजीद करती थी। So what is Paul saying? तो यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? Paul saying, I didn't talk to flesh and blood. I heard from God, then I did what God told me to do. वो ये कहता है कि मैंने खून और गोश्त से सलाह नहीं ली और मैंने अपने से कुछ नहीं बयान किया, बल्कि मैंने वो कहा जो खुदा ने मुझसे कहने को कहा। I was alone with God in Arabia. I was learning from him. Then I went to Jerusalem and talked to Peter and James. मैं अरब में खुदा के साथ अकेला रहा, उसे सुना और उससे सीखा, और फिर मैं गया और कैफा के साथ और याकूब के साथ ये बातों को बयान किया।
And then I just went and did my mission. और फिर उसके बाद मैं लगातार जाता रहा और अपने मिशन के काम को जारी रखा। And I received the vision from God, और मैंने खुदा से एक रोया रिसीव की है and I went after his heart, his mission. और मैं खुदा के दिल के मुआफिक जो काम था उस पर मैंने चलना शुरू कर दिया। And this mission is the same today for you and me, for us. और ये जो मिशन है वो मेरे लिए और आपके लिए बिल्कुल सेम है आज भी। There are so many people that never heard the gospel. There are so many people in Pakistan today बहुत that सारे never लोग heard the true gospel. बहुत सारे लोग आज भी पाकिस्तान में हैं जिन्होंने कभी इंजील को नहीं सुना। And we have the same responsibility. We can have the same calling as Paul had. हमारे पास Preach. वही जिम्मेदारी है जैसी पलूस के पास थी कि हम इंजील को फैलाएं, To go to new places, नई जगहों पर जाएं, to go to the Sindhi people, to the Sindh region, जहां पर लोग बड़े गुनाहगार हैं, गुनाह किया जा रहा है, उस जगह पर चले जाइए। to go to Baluchistan, to the tribal people. बलूचिस्तान में चले जाइए, जो छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते हैं वहां पर। Mission is not always another country. Mission always starts with Jerusalem, with your home base. मिशन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, मिशन ये है कि जो आपके घर से, आपके इलाके से शुरू हो। If you are not a missionary wherever you live, why do you think God will use you in another country? अगर आप मिशनरी हैं और अपने इलाके में ही नहीं काम कर रहे तो कैसे कर मुमकिन है कि खुदावंद आपको दूसरे इलाकों में भी, दूसरे मुल्कों में यूज करेगा। Yeah, I was talking to Pastor Assad, and they are handing out tracts and giving away gospels in Malaysia. I mean, that's good. मैंने पास्टर असद से बात की और देखा कि वो लोगों को बाइबल दे रहे थे, ये बड़ी जबरदस्त बात थी। Missionary starts where you live. मिशन वहां से शुरू करें जहां पर हैं अभी आप। And when God calls you, he will give you the tools. जब खुदावंद आपको बुलाएगा तो फिर वो आपको चीजें भी दिखाएगा कि आपने कैसे करना है। He will give you everything that you need. तो वो फिर आपको बताएगा कि आप हर चीज जिसकी आपको जरूरत है। So you can be a witness to God. तो आप खुदावंद के शागिर्द बन सकते हैं, उसके गवाह बन सकते हैं। Yeah, when I die one day, हम सब जब एक दिन मर जाएंगे, या on my tombstone, maybe I would like this to be in my tombstone, the tombstone is some writing. तो कब्र के ऊपर जो है ये चाहते हैं लिखा हुआ होगा दो पत्थरों के ऊपर। He was a witness of Jesus Christ. ये यीशु का गवाह था। No, I like this one more. Well done, my good and faithful servant. एक पत्थर के ऊपर ये लिखा होगा कि ये यीशु का गवाह था, दूसरे के ऊपर ये लिखा होगा कि शाबाश मेरे वफादार ईमानदार नौकर। वेरी गुड। Yeah, we can do little things. हम छोटी छोटी चीजें खुदा के लिए कर सकते हैं। Yeah, in चाइना के अंदर we had two very big churches. बहुत बड़े बड़े चर्च हैं। And there were some people that were always waiting for God to call them or use them for something. और वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि जहां पर लोगों के खुदा उनको बुलाए और उनको इस्तेमाल किया जाए वहां पर। But they didn't like cleaning, they didn't like visiting the old people, they didn't like the little things. They wanted to do something big for God. लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो है वो करनी पसंद नहीं करते, ठीक है, वो बड़ी बड़ी चीजें खुदा के लिए करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा मर्ज होता है। I'm sorry. माजरत के साथ मैं ऐसा कह रहा हूँ। Don't look for the big thing, start with the little things. बड़ी बड़ी चीजें करने के बारे में मत सोचिए, छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए। Yeah, sometimes I talk to some Pakistani brothers that are not attending our Bible school, and they tell me how big their ministry is and how big things are for them and how successful they are, and they tell me, just give me some money.
कई बार ऐसा होता है पाकिस्तानी लोग जिनके बड़े बड़े चर्च हैं वो मुझे दिखाते हैं तस्वीरें कि हम ये कर रहे हैं, हमने ऐसा किया। तो लेकिन बाइबल स्कूल में वो कभी नहीं आए, तो फिर वो मैंने कहते ने हुन सान पैसे भी दे। So I told them, if your ministry is so good and God is blessing you and using you, why do you asking for money from me? Just a little money, he says. I mean, don't ask me. और मैं फिर उन्हें कहता हूँ कि अगर तुम्हारा चर्च इतना बड़ा है और खुदा तुम्हें इतना ही यूज कर रहा है तो फिर तुम इन्हें पैसे क्यों पूछना पे। Better to be humble बेहतर ये होगा कि अपने आप में आजिज़ी पैदा करो and do little things for God. Little things. Do things that people cannot even see. छोटी छोटी चीजें करें, ऐसी चीजें जिन्हां दा लोकां नूं पता भी ना लगे क्या तुसी कीता, निक्की जिन्नी कुछ है, निक्की जिन्नी को नहीं की, God sees everything. लेकिन खुदा सब कुछ देखता है। And God can give you a supporter anytime from anywhere. If it's his work, his supply will be there for you. खुदा आपके लिए मुहैया कर सकता है, उसकी जो बरकतें हैं वो आपके लिए हैं। So I love this about Paul. तो मुझे ये पौलुस रसूल के बारे में बहुत जबरदस्त चीज लगी है। That he says, I know who I was. I persecuted the church, and I know who I am. I'm a believer in Jesus Christ. वो ये कहता है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैंने लोगों को सताया है लेकिन अब मैं ईमानदार। And I know what is needed to shut up these Judaizers. वो ये कहता है कि मुझे पता है कि ए जड़े यहूदी जड़े शिद्दत पसंद ने इन्हां दा मुंह किवें बंद करना है। You love them by not listening to them. उनसे मोहब्बत तो करनी है लेकिन उनको सुनना नहीं है, जो वो कहते हैं वो नहीं करना। You love them by telling them, don't you remember what Paul taught us at the beginning? आपने प्यार से उन्हें कहना है कि क्या आप भूल गए हो कि पौलुस ने शुरू में हमें क्या सिखाया था, क्या बताया था। You know, false doctrine is very funny. False doctrine is something, okay. क्या आपको पता है कि ये जो गलत तालीम होते हैं, झूठी बातें होती हैं, बड़ी अजीब सी होती हैं। False doctrine sounds very biblical. It sounds like it's out of the Bible, but you cannot show it in the Bible. जो इस तरह की बातें होती हैं, आप उन्हें बाइबल में से बयान नहीं कर सकते हैं। And I like that because, you know, you can always test a doctrine when you open the Bible and you look at what the Bible has to say about आप किसी भी तालीम को जो आपको बताई जाती है बाइबल खोलें और उसमें से देखें क्या ये उसमें है या नहीं है। And it's so easy to find false doctrine if you look through the mirror of God's word. और ये बड़ा ही आसान है कि जब आप खुदा के कलाम को खोलते हैं, मुझे एक आईना है, सब कुछ आईने की मानिंद आपको साफ साफ दिखाई देता है उसमें। That's how we can judge and that's how we can win. इसी तरह से हम दूसरे लोगों के साथ जो हैं उनको जीत सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं। Someone asked me last week. किसी ने मुझसे पूछा पिछले हफ्ते इनसे यानी पास्टर जोसेफ से, why is Bible school so important for you? बाइबल स्कूल क्यों इतना जरूरी है आपके लिए? And I said it's not important for me. और मैंने उसे कहा कि ये मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। But I believe it's important for God and important for the students that are hungry for God. मैंने उसे कहा कि ये खुदा के लिए और यीशु मसीह के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। Because if you are hungry for God, क्योंकि अगर आप खुदावंद के लिए भूखे हैं, God will feed you. खुदावंद आपको खिलाएगा। And you will have discernment. You will see clearly. तो आपकी जो अकल है वो बिल्कुल खुल जाएगी, आपको गलत और सही में फर्क नजर आएगा, इम्तियाज कर सकेंगे आप। And you can make judgments. तो आप इम्तियाज कर सकेंगे इन लोगों का, कौन सही है कौन गलत है। And when the false brothers come, और जब झूठे भाई आएंगे आप में, you can show it in the Bible. This you are false brother. तो आप उन्हें कह सकते हैं वे तेरे झूठे भरा इतने भी मौजूद नहीं।
बाइबल You you are now welcome in my church. Sorry. आप मेरे चर्च में आपका दाखला ममनू है हमारे चर्च में But you know, you should be converted. You should believe in लेकिन Jesus Christ. अगर आप ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर फिर खुशामदीद You need to be saved. You need to be born again. आपको नए सिरे से पैदा होना जरूरी है नए सिरे से ईमान लाना है आपको Okay, I think we'll stop with chapter 1 today, and then we'll continue from chapter 1 next class. हम पहले चैप्टर पर आज हम एहतमाम करेंगे फिर अगली क्लास में हम दोबारा से देखेंगे इसको Yeah, let's learn from Paul. He's a master lawyer. He's a master arguer. He's a master communicator. वो एक आए पलूस रसूल से सीखे वो एक बड़ा जबरदस्त वकील है बाइबल का वो एक बड़ा जबरदस्त वकालत करने वाला है फजल Because maybe there will be a time when we also have to defend our ministry. क्योंकि हो सकता है कई बार आपको भी अपनी मिनिस्ट्री को अपनी खिदमत को का दफा करना पड़ जाए ठीक है लोगों के साथ Okay, good. Thank you. God bless you.